Hello, good evening everyone. Welcome to English Pathshala. Today we are going to study class 11th biology section from its first chapter, The Living World. So, what we see? We see different types of organisms living in our surrounding. है ना? We see large varieties. हमें कई सारे varieties के plants और animals जो है वो देखने में आते हैं. हमारे आसपास वो सभी रहते हैं. Including we, हमारे साथ साथ. So there are see in the pictures that there are some different types of habitats that I have shown here. That is cold mountain, and then deserts, forests, oceans, and the hot spring. Okay, organisms or animal like snow leopard, mountain goats, they are living in cold mountains. Snakes, lizards are the animals which are possibly found in the desert. Birds, monkeys and different animals which we can say that they are living in the where in forest. And as we see that the ocean contains a large variety of organisms which is not possible to see that how many organisms are living in ocean. So like fishes, or we can say corals. Okay, these are the organisms which we can found in a ocean. So these are the different habitats. Now coming to the hot spring. Okay, what is hot spring? Hot spring is a area with natural hot water. Area with natural hot water. ओके अब आप बोलेंगे कि इतने गर्म पानी में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रहता होगा. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, thermophilic organisms, I'll say thermophilic organisms which can tolerate the temperature 60 degrees Celsius to 108 degrees Celsius. वो 60 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री सेल्सियस तक पाए जा सकते हैं, यानी कि वो इतना उनमें इतनी शक्ति होती है that they can tolerate this high temperature 60 degree to 108 degree. Now next is our first question, that the main question of the chapter. What is living? Living क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम living कहेंगे? So the characters living are the anything, कोई भी ऐसी चीज जो alive हो, which is alive, जिसमें जान है, and और जो कुछ ऐसे characters show करते हैं for life जिनमें growth दिखता हो, reproduction दिखता हो, who can have the ability to sense the environment, they can respond and metabolism. So these are the general characters which are the characters of a living. So here we have already seen that the reproduction, metabolism, consciousness, cell organization and the growth, these are the general characters of a living. Now we will see these characters in detail to know that which character is a defining feature. Our first one is growth. Okay, so growth is basically increase in mass and increase in number of individual. किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी चीज की जिसमें जिसका मास बढ़ रहा हो और जिसका नंबर बढ़ रहा हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ. उसे हम क्या काउंट करेंगे? दैट इज अ ग्रोथ. ओके, एज वी ऑल नो दैट जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सभी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. कैसे, किसके थ्रू ग्रो करते हैं? बाय सेल डिवीजन. वी ऑल्सो ग्रो विद द हेल्प ऑफ अ सेल. हमारे सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं एंड देन वी कंटिन्यू टू ग्रो. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? दैट प्लांट, इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में सेल डिवीजन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है. प्लांट्स में सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ होता है. बट इन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है. वो एक सर्टेन एज आने के बाद क्या है, हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे कि हमारे कुछ पार्ट्स हो गए लाइक हेयर्स, अगर हम हेयर्स को देख लें, okay, and the second one is nails को देख लें. So these are the some organs are some parts of our body which continue growing throughout our life. They continue growing throughout our life. Okay, now coming to the first point, that cell division occurs in certain tissues. Cell division और हमारे कुछ ऐसे टिश्यूज जो कि पुराने हो जाते हैं या जो डेड हो जाते हैं,
उन्हें भी रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, यानी कि उन जगहों पर भी जो ग्रोथ है वो पॉसिबल है। Now the second one is the in unicellular organisms, unicellular organisms में जो है इवन हम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, सो दिस इज वेरी दिस इज नॉट पॉसिबल टू सी और the growth of the unicellular, but with the help of the microscope we can count the number of cells. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम नंबर ऑफ सेल्स काउंट करके ये बता सकते हैं दैट उनमें जो ग्रोथ है वो पॉसिबल है या नहीं है। ओके, अंडर द माइक्रोस्कोप, किसके हेल्प से, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ओके, नाउ नोट गिवन दैट इंक्रीज इन बॉडी मास, ठीक है, किसी भी चीज का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बॉडी मास जो है वो बढ़ रहा है तो वो भी किस में कंसिडर किया जाएगा, वो भी कंसिडर किया जाएगा कि उसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लो, लेट अस सी द पिक्चर्स। ये क्या है, रॉक है, राइट, एंड ये क्या है, ये सैंड है, यानी कि रेत का टीला। ओके, तो इनमें क्या है, इनकी भी जो बॉडी मास है वो बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, रेत आते रहते हैं जगह जगह से उड़कर, एंड दे जस्ट डिपॉजिटेड ऑन वन प्लेस, वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेम इज एज द केस ऑफ दीज रॉक्स। ओके, सो हियर व्हाट वी सी इन हम फर्स्ट पॉइंट में क्या देख रहे हैं, दैट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स, बोल्डर्स यानी कि रॉक्स और सैंड माउंटेन्स आल्सो ग्रो, वो भी ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, बाय एक्यूमुलेटिंग द मटेरियल्स, जो मटेरियल्स है वो उनके सरफेस पर इकट्ठी होती जाती है, जिसके थ्रू उनका जो बॉडी मास है वो क्या होता है, वो बॉडी मास उनकी इंक्रीज होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। एज वी ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें क्या है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू यंग वंस जो है वो फॉर्म होते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स के थ्रू जो है न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म। सो रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, हमें ये भी हमारा रिप्रोडक्शन दो प्रकार का, सेक्सुअल होते हैं एंड एसेक्सुअल। ओके, नाउ लेट अस सी द डिफरेंस, जस्ट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में two individuals are involved, right, two individuals are involved where the fusion of male and female gametes are, क्या fusion of male and female जो है वो होता है, जिसके थ्रू हमारा zygote फॉर्म होता है and the new individual is produced। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा प्लांट हो गया एंड एनिमल हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी गैमेट जो है आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बडिंग देखा है हमने, पहली क्लासेस में पढ़ा है, ये सब हमने रिप्रोडक्शन के बारे में काफी 8th 9th 10th में हम पढ़ते आए हैं, दैट बडिंग किन में होता है, वो हाइड्राइन ईस्ट में, फ्रेगमेंटेशन प्लानेरिया में होता है। प्लानेरिया अगर उसकी कहीं से भी अगर प्लानेरिया को हमने कट कर दिया तो दैट विल बी ग्रो इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म, वो जो है एक पूरे ही ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। एंड द थर्ड वन इज एमीबा। एमीबा का जो वो रिप्रोडक्शन होता है किसके, दैट इज बाइनरी फिशन। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट अ फंगी, अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी में क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या होते हैं, वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं। ओके, बर्स्ट आउट इन फेवरेबल कंडीशन, जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो बर्स्ट कर जाते हैं एंड देन दे ग्रो इनटू अ न्यू वन। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर को कंसिडर कर सकते हैं। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल हो गए है ना, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, वो रिप्रोड्यूस यानी कि वो न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट दे आर स्टिल अलाइव, राइट, बट दे आर स्टिल अलाइव, वो भी जिंदा है। देयरफॉर हम रिप्रोडक्शन को लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो भी जिंदा है। एंड सेम एज द केस ऑफ ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द
सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? इन आवर बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो दोनों में होते हैं, यूनिसेलुलर में भी होते हैं, मल्टी सेलुलर। ये दोनों टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसे एग्जिबिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नाउ एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म इज सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड्स नीडेड बाय द सेल। सेल के लिए जो भी कंपाउंड चाहिए या जिन भी चीजों की जरूरत है उनका सिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, इन सब की जरूरत क्या है? इन सभी की जरूरत सेल्स को पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म। जस्ट कमिंग टू द कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इज जस्ट द ऑपोजिट। वहां पर सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट? सो द ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल्स का टूटना, यानी कि जैसे हम फॉर एग्जांपल डाइजेशन में क्या होता है? हम खाने को लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, वो क्या है? वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है ना? सिंपलर फॉर्म, राइट? एंड देन वी गेट द एनर्जी, उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। The living organisms are made up of, हमें मालूम है that जो living और वो किसके बने होते हैं? सेल्स, है ना? as we हमने पढ़ा है that cells are the basic structure and functional unit of life, है ना? जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? वो सेल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हमें मालूम है कि यूनिसेलुलर जो है वो सिंगल सेल होते हैं, उनमें उतने ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं हर फंक्शन के लिए, बट स्टिल उनमें जो है वो सेल्स जो है वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फॉर अगर हम देखें दैट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एट अ बेसिक लेवल सेल देखेंगे, एंड आफ्टर दैट विल सी टिश्यू, राइट? एंड आफ्टर दैट व्हाट विल सी? ऑर्गन्स, है ना? इसके बाद हम क्या देखेंगे? ऑर्गन्स देखेंगे, देन विल सी ऑर्गन सिस्टम देखेंगे, है ना? ऑर्गन सिस्टम देखेंगे, जैसे हमारा स्टमक क्या है? ऑर्गन हो गया, एंड इसका ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? पूरा अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम। एंड देन विल सी द होल ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दिस इज द बेसिक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सीन इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में किसी भी तरीके का जो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पॉसिबल है। Therefore, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, ठीक है? एनवायरमेंट, हमारे आसपास के सराउंडिंग एनवायरमेंट में क्या हो रहा है उसको सेंस करना। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो है क्या करते हैं? वो लाइट को सेंस करते हैं, दे आल्सो सेंस टू वाटर, टेम्परेचर। हाउ वी से दैट प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट। अगर हम टच मी नॉट प्लांट और हम कहें शाई प्लांट और वे से छुई मुई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जैसा कि हमने फिगर में दिया है, तो इसमें क्या होता है? अगर हम इसको टच करते हैं, है ना, इफ यू टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई प्लांट, इट क्लोजेस इट्स लीफ। सो टच जो है वो क्या हो गया? हमारा स्टिमुली हो गया, है ना? एंड क्लोजिंग द लीफ क्या हो गया? क्लोजिंग द लीफ क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया, राइट? सो इस प्लांट ने रिस्पॉन्स किया, इसलिए हम क्या कहते हैं? दैट कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग। ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर यानी कि
वो सोच सकते हैं एंड बोल सकते हैं अकॉर्डिंगली, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं एंड बोल सकते हैं। एंड नन ऑफ द एनिमल, और भी किसी जानवर में या और भी किसी ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? सेल्फ कॉन्शियसनेस की, कि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचे और बोले। Therefore we say that human beings are self consciousness. So class, here today's class completed. Our next session will be in these topics: identification, binomial nomenclature, classification of the organism, taxonomy, systematics and its objectives. We'll consider these topics in the next session.